So hello guys and welcome back to my YouTube channel. So guys, in this video I will talk about my experience of NEET. जैसे कि आप सब लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई फेल्ड इन नीट. आई वाज नॉट एबल टू गेट द गवर्नमेंट सीट इन इंडिया. सो आई एम स्टडिंग इन अब्रॉड, MBBS अब्रॉड इन ताजिकिस्तान, दुशांबे. आई एम ATSU में थर्ड ईयर स्टूडेंट. सो गाइज शुरू करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा नीट में एंड वाई आई फेल्ड इन नीट. मैं नीट क्लियर क्यों नहीं कर पाया. मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट क्लियर दैट मैं आप लोगों को कोई टिप्स नहीं दे सकता बिकॉज मैंने खुद ने नीट क्लियर नहीं किया. सो बट मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता सकता हूँ कि मेरी मिस्टेक्स क्या रही थी, मेरी गलतियाँ क्या रही थी जिनकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ नीट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे मार्क्स थे, जो नीट में मेरे मार्क्स आए थे वो एवरेज मार्क्स आए थे. मतलब कट ऑफ कुछ गई थी उस टाइम पे 550 के आसपास गई थी एंड वो बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए. मैंने कोई ड्रॉप भी नहीं लिया था. आई जस्ट गेव द एग्ज़ाम ऑफ नीट आफ्टर क्लास 12th. देन I just not took any kind of drop after class 12th. I directly go to abroad for MBBS because I just not want to waste my 1 or 2 year in preparing for NEET. सो गाइज इस वजह से मैं बाहर चला गया था. अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अपनी जर्नी कि मैं क्लास 10 से लेकर और क्लास 12 तक क्या रहा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर क्लास 10th आई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट. नाउ ऑल्सो आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम एवरेज स्टूडेंट. सो in class 10th I scored 8.8 CGPA. I was a CBSE student, so I secured 8.8 CGPA. So after 10th my father told me that now you should go further for studies for, and he asked me what is your passion, what do you want to become. So I told him that I want to become doctor. So he told me that you should take admission in any of your coaching for your preparation of NEET, AIMS, etc. So that time I also don't know about the coachings, etc. And so we searched for coaching. So we came Jaipur. As you all know that Jaipur, Kota and many other cities in India are famous for coaching. A majority of students are studying in Kota. As you all know, LN Kota, Akash, Resonance, etc. Akash in Delhi. So these are the coachings in Kota. So I choose for Jaipur because Jaipur is very near to my hometown. So I just came Jaipur and I searched for a coaching. So we decided that I should take admission in LN because I asked to many of the people, my friends, my father also asked to many of them that which is the better coaching where I can study. So I thought that LN will be the best option for me so I can prepare for NEET. So I started my coaching at class 11th only because I think that after class 12th who does coaching, that is very tough because in 1 year only student have to cover 11th and 12th both. So I decided to study from class 11th in the coaching because many of the student here in Jaipur, Kota and many other cities start studying in coaching from class 8, class 7 because they are preparing for many of the exams like NTSE and many of the Olympiads for biology, physics, etc. But I just not give any kind of NTSE. Yes, I applied for Olympiad for biology in my school time. So when I came Jaipur, I choose LN Jaipur. As you all know that time when I came to Jaipur, that time I think LN was opened in Jaipur only. I think only 1 year was passed when I came Jaipur. I choose for LN because all of the student, all of my friends told me that that will be the better coaching, that will be the better option for preparing of the NEET. Because as you all know, many of the toppers, rankers, and also many of the selection occur from LN. So that's why I choose LN. I just different student have different choice. I was also choosing for Akash also. बट इन द लास्ट मोमेंट आई जस्ट अप्लाइड फॉर LN. सो गाइस जब मैं LN के अंदर आया, फर्स्ट टाइम जब मैं LN के अंदर आया, so the environment था that was very different because I changed the city and I was not living with my parents. I was away from my home, so I was living in a hostel. So that was very typical for me, but I started living. उसके बाद धीरे धीरे जब मैं उस माहौल में ढल गया, देन धीरे धीरे पढ़ाई वगैरह के अंदर भी इंटरेस्ट जगने लगा. शुरू में तो कुछ समझ में आता नहीं था फर्स्ट टाइम पे जब हम गए थे LN के अंदर. when I started studying, that was typical, approx 1 month was typical, but धीरे धीरे I get started studying धीरे धीरे. then in LN अगर आप लोग स्टडी किए हैं, in every 21 days there is exam.
So हर 21 दिन में every 21 days a test occur, whole year in class 11th also, in class 12th also, but I don't know about the droppers. So जब मेरा क्लास 11th के अंदर जब मेरा फर्स्ट टेस्ट के लिए बोला गया था, जब हमको मैसेज मिला था कि आप लोगों का कुछ दिन बाद है जो टेस्ट होगा, तो जब फर्स्ट टेस्ट था हमारा, बिल्कुल मेरा फर्स्ट टेस्ट था, जब उसके अंदर स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स वगैरह थे वो वगैरह आए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो मैंने सोचा कि आई हैव टू स्टडी हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड मैंने खूब मेहनत की. फिर खूब मेहनत करने के बाद मुझे जो फर्स्ट टेस्ट था, मुझे आज भी याद है कि मेरे जो फर्स्ट टेस्ट था उसके अंदर मेरे 330 मार्क्स आए थे. तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा उसके बाद कि मैंने फ़र्स्ट टेस्ट के अंदर ही 330 मार्क्स ले आया वगैरह. फिर वो फर्स्ट टेस्ट के अंदर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ. फिर धीरे धीरे सेकंड टेस्ट आया. देन सेकंड टेस्ट के अंदर आई स्कोर्ड अबाउट 400 प्लस मार्क्स. आई डोंट नॉट नो एक्चुअल मार्क्स, बट 400 प्लस मार्क्स आई स्कोर्ड. देन मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डेवलप हुआ. देन धीरे धीरे ऐसे हमारे टेस्ट होते रहे. फिर फ्लक्चुएट होते रहते थे मेरे मार्क्स, कभी 400 आ गए, कभी 300 आ गए. और मिनिमम जो मेरे मार्क्स, मतलब एवरेज जो मार्क्स रहते थे वो रहते थे 300 से 380 के बीच में अप्रॉक्स. बहुत कम बार मैंने 400 क्रॉस किया 11th क्लास के अंदर. आई थिंक 1 or 2 times आई टच 400 प्लस मार्क्स. और बाकी के अंदर मेरे अप्रॉक्स 300 से 380 390 यहीं तक ही मार्क्स टच होते थे. सो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से. आई गिव माई बेस्ट, नॉट बेस्ट बट आई ट्राइड माई बेस्ट. क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि मैंने इतनी स्टडीज़ नहीं की होगी. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैं जितना पढ़ सकता था. लेकिन आफ्टर स्टडिंग सम टाइम आई गेट बोर्ड. जैसे मैं फिज़िक्स उठाता था मुझे नींद आने लग जाती थी. आई स्टार्टेड स्टडिंग केमिस्ट्री, देन ऑल्सो आई फील बोर्ड. बायोलॉजी आई स्टडी सम टाइम. सो लाइक दिस आई completed माई क्लास 11th. इन क्लास 11th मैं स्कूल भी नहीं जाता था. आई टुक अ डमी स्कूल. सो कभी कभी स्कूल जाना होता था हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन. आई वाज इन अ टी पी एस स्कूल. सो फिर जब क्लास 11th ख़त्म हुई, क्लास 11th के एग्ज़ाम वगैरह हुए, क्लास 11th के अंदर आई सिक्योर्ड अबाउट 70%. एंड जो भी था हमारा 11th के अंदर जो भी टेस्ट वगैरह हुए सबों के अंदर अपना एवरेज स्कोर था. फिर मैंने क्लास 12th के अंदर और कोशिश की कि अब मेरे को अब की बार और ज़्यादा अच्छा करना है. हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम शुरू से मुझे स्टार्ट करनी है स्टडीज़ को. फ्रॉम द बिगनिंग आई विल स्टार्ट स्टडिंग, आई विल स्टडी अ लॉट, आई विल स्टडी फुल डे. सो ऐसा मोटिवेशन मेरे में डेली आता था. मैं डेली कोई ना कोई मोटिवेटेड वीडियो देखता था या किसी से मोटिवेशन लेता था. एलन के अंदर कोई टीचर हमको कोई मोटिवेशन देता था तो आई गेट मोटिवेटेड इनफ, आई गेट मोटिवेटेड. लेकिन वो मोटिवेशन मेरा कोचिंग से और घर जाने तक ख़त्म हो जाता था. तो वो काम नहीं किया जो भी मोटिवेशन वगैरह था. लेकिन मैंने मेरी तरफ से धीरे धीरे कोशिश की. फिर जब क्लास 12 चालू हुई तो क्लास 12 के अंदर मैंने क्या किया, जो स्कूल थी मेरी 3 से 4 days की स्कूल थी, मैंने उसको भी बंद कर दिया कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, डायरेक्टली आई विल गिव माई एग्ज़ाम. सो मैंने स्कूल वगैरह जाना बंद कर दिया. आई टुक अ परमानेंट डमी स्कूल दैट आई विल नॉट गो फॉर any of my daily class and I will just give the exam directly. I will give the exam, my half field exam and the final exam. So फिर मैंने अपनी स्टडीज़ को शुरू किया वापस, धीरे 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 स्टडीज़ को शुरू किया. फिर मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट दिया, सेकंड टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स वही थे 300 400 अप्रॉक्स. 400 के अंडर अंडर एंड 300 के ऊपर ऊपर. बहुत बार मेरे मार्क्स है जो 200 भी आए, 150 तक भी मार्क्स आए. क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते थे जो बिल्कुल सर के ऊपर से जाते थे. सो धीरे धीरे मोटिवेशन है जो बहुत ज़्यादा गिरने लग गया था. मोरल बिल्कुल डाउन हो चुका था जब मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा कम आते थे. मैं पापा से बात करता, आई टॉक टू माई फादर, ही मोटिवेट्स मी दैट नो प्रॉब्लम सन. देन जब हमारी जो 12th क्लास थी वो ख़त्म होने वाली थी, मतलब जो एलन की जो कोचिंग थी वो ख़त्म होने वाली थी अप्रोक्स नवंबर के अंदर. तो नवंबर के अंदर जब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो आई वेंट टू माई होम बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई बोर्ड एग्ज़ाम ऑल्सो, क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम. सो मैंने सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम पे फोकस किया अप्रॉक्स 3 to 4 months. आई स्टार्टेड गोइंग स्कूल. So I focused on a board. I started going school daily. I used to go school, and then there I studies for board exam. Like you know that there is some difference between board exam and the preparation of the NEET. You have to prepare numerical only for the NEET exam. You have to prepare only for the numericals. You have to only remember the formula. But for board exam, you have to do the derivation of whole. Like in physics, you also have to write the definition of everything. What is work? What is energy? What is force? So these things I started studying. Then धीरे धीरे I prepared for my board exam. Then finally after giving my board exam
I completed my board exam. Then after giving board exam, I came back to Ellen. I started laser test series was going on in Ellen, so I started joining that. I started giving exams. तो मैंने जो भी मेजर टेस्ट के एग्ज़ाम थे वो दिए. मुझे अभी तक याद है कि शायद मेरा लास्ट एग्ज़ाम था वो शायद 12 या 13 को था. फिजिकल का एग्ज़ाम था वो. लास्ट का एग्ज़ाम देने के बाद आई केम बैक टू जयपुर. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर मेजर टेस्ट, आल्सो ACT. जो भी एलन कॉमन टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट होते थे, उनके लिए स्टार्ट कर दिया मैंने स्टडी के लिए, क्योंकि बिकॉज नीट पेपर वाज देयर. सो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया. लेकिन जो मेजर टेस्ट होते थे दैट वाज टू टिपिकल फॉर मी. आई डोंट नो of other student, but for me it was very typical. I was not able to get 300 marks also in that. I was getting 150 marks, I was getting 200 marks, 250 marks. So that time my motivation was very down, because जो एलन वाले हैं जो पेपर तैयार करते हैं मेजर टेस्ट का, वो उस लेवल का तैयार करते हैं कि जितना अच्छे से स्टूडेंट प्रिपेयर होकर आएगा उतनी अच्छे से क्वेश्चनों को फाइट कर पाएगा, अपना टाइम मैनेज कर पाएगा. तो फिर मेरा पूरा टाइम मैनेजमेंट भी बिगड़ चुका था उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि 4 to 5 months मैंने कोई भी नीट से रिलेटेड ना तो OMR प्रैक्टिस की थी, ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी. सो सब कुछ शफल हो चुका था. देन आई अगेन स्टार्टेड स्टडिंग की शायद धीरे 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 कुछ ना कुछ मेरे को आता रहे. फिर उसके बाद जब लास्ट के अंदर मैंने जब अपना नीट का एग्ज़ाम दिया, तो नीट का एग्ज़ाम जैसे ही मैंने दिया, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आई वॉज डैम श्योर दैट आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड. बिकॉज जो मैंने पेपर देखा, पेपर वॉज नॉट too hard, paper was not too easy, that was average. But for me the pressure of the exam was too much. So जो वो प्रेशर होता है एग्ज़ाम के अंदर, उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. I was forgetting the formula of physics. I was not able to recognize the structure in that chemistry. You know that molecules, biomolecule chapter, biomolecule chapter is there. In that you have to study many of the structures. Then organic chemistry, you have to make the structure, their name, etc. So I was forgetting at the time of NEET while I was giving the NEET, because there was too much pressure. So ऐसे मैंने अपना NEET का एग्ज़ाम दिया. Then I was damn sure that I will not get selected. Then I told my father that I will not get selected, I will not get enough marks, I will able to clear the cutoff. Then my father told that what is the next option, where you wanna go, where you wanna study. Then I told him that I wanna become doctor, and if you'll say then I will do once more, I'll try once more. Then my father told me that it's all your choice, what you wanna do. You wanna drop, then you can drop. If you wanna go anywhere else, then you can go anywhere else. If you wanna do private college, then you can go for private. Then many of my friends were studying in abroad. So that time I used to talk to them. Many of my seniors, I talked to them. My school seniors were studying in abroad in Russia. Then I talked to them. One of my friend was there with me, he also talked to their friends, their seniors. So they all told us that wherever you study in India, you drop anything you do, finally you have to clear your MBBS, you have to get degree. And if you will do in outside India, means if you'll go abroad, then you have to apply for a exam, you have to sit for exam that is known as MCA exam, you know, FMG, foreign medical graduates exam. And now it will be next, that will be common for everyone, means the student who are studying in Indian medical college, private or government college, and the student who are studying in abroad, they all have to appear for that exam. So then I thought that I have to go abroad. Then I convinced my father, I told my father. Then my father talked to many of the consultant and also many of the parents of my seniors. फिर उन सबों ने बोला कि आप बाहर जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम आउटसाइड. आई कंसल्टेड एवरीथिंग अबाउट द कॉलेजेस कि मेरे को कौन सी कॉलेज के अंदर जाना है, विच कॉलेज विल बी बेस्ट फॉर मी, क्यों जाना है इस कॉलेज के अंदर. मैंने हर चीज़ के बारे में रिसर्च की, एक एक चीज़ के बारे में कि कौन सी कॉलेज बेस्ट रहेगी, ये कॉलेज क्यों बेस्ट रहेगी. सो जब मैंने सब डिस्कस कर लिया, उसके बाद कुछ समय बाद मेरा नीट का रिजल्ट आया. सो नीट के रिजल्ट के अंदर आई गॉट एवरेज मार्क्स, एज आई टोल्ड यू. आई डो नॉट रिमेंबर द मार्क्स. सो फिर मैंने बाहर जाने की सोच ली थी कि अब मेरे को बाहर जाना ही है, आई हैव टू स्टडी आउट ओनली. फिर मैंने ऑप्शन लिया कि मेरे को MBBS अब्रॉड करना है. देन आई सर्च फॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज़, रशिया, यूक्रेन, बहुत सारी मैंने कंट्रीज़ देखी. फिर उसके बाद फाइनली आई ऑप्ट फॉर ताजिकिस्तान. देर आर मैनी रीज़न वाई आई चूज़ ताजिकिस्तान अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हर कोई का प्रोस्पेक्टिव अलग होता है. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यू शुड आल्सो हैव टू गो टू ताजिकिस्तान और any of the college I'll suggest. I'll not suggest you, it depends all on you. So ये मेरा एक्सपीरियंस था. और
जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ यही की मैंने कि एक तो आई वॉज नॉट रेगुलर एट माई स्टडीज़। सबसे बड़ी गलती कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट देन यू हैव टू रेगुलर फॉर योर स्टडी। इफ़ यू स्टडी, डोंट स्टडी one day 8 hour and next day 4 hour and then next day you are not studying. Study for regular means today if you have to study 4 hours, the next day also you study 4 hours, then next day also you study 4 hours. You should be continuous on your studies. डो नॉट गेट इरेगुलर ऑन योर स्टडीज़, गेट रेगुलर ऑन योर स्टडीज़। क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो आप कंसिस्टेंट, और क्वांटिटी में पढ़ाई मत कीजिए, क्वालिटी में पढ़ाई कीजिए। यू हैव टू स्टडी क्वालिटेटिव, मतलब आपको जो भी पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको याद रखना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, कितने क्वेश्चन दिन के करने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका आपका पोटेंशियल कितना है, हाउ मच यू कैन एबल टू डू इन अ डे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एवरीथिंग दे डू इन अ वन डे। मैनी स्टूडेंट हु सेपरेट्स फॉर एवरी डे एवरी सब्जेक्ट। सो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। मेरी गलती यही रही कि मैंने जो भी पढ़ा उसको मैंने दोबारा रिवाइज करने की कोशिश नहीं की फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि अगर मैं उसको रिवाइज करता तो मेरे को वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता। आई स्टडीड एंड देन आई फॉरगॉट फॉर आफ्टर सम टाइम। टुडे स्टडीड, the next day I remember, for 1 week I remember, then after 1 week I used to forget that. Everyone have this problem, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे कोई चीज़ को तो यू विल गेट फॉरगेट, ये तो साफ सी बात है। सो मेरे साथ भी यही होता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस, कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो। मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा, मैं आपको कोई चीज़ बता नहीं रहा मतलब कि आपको ऐसे ही करना है। मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था। मेरी गलती रही कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करता था कभी कभी कि इफ़ आई एम नॉट गेटिंग द आंसर देन आई जस्ट गो बैक एंड आई जस्ट सी द आंसर, देन आई ट्राई फॉर द आंसर एंड आई यूज टू गेट द आंसर। अब वो मेरा मेथड गलत होता था, सही होता था, आई डोंट नो, बट आई यूज टू गेट द आंसर एंड वो मेरे को हैबिट बन गई थी। और वो जो हैबिट थी वो बहुत बेकार होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। एनी वन स्टूडेंट हु इज स्टडिंग फॉर और प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन्स, एडवांस और नीट, एम्स, एनी ऑफ योर एग्ज़ाम। सो कभी भी आप आंसर को देख के और फिर उसके बाद है जो कोशिश मत कीजिए कि आप आंसर को निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक वन पेज, इफ दैट पेज हैव 10 क्वेश्चन देन फर्स्ट यू ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अगर 10 में से आप 5 क्वेश्चन खुद के कर पा रहे हैं, आपने खुद ने क्वेश्चन किए हैं विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट सीइंग द आंसर और विदाउट आस्किंग टू एनीवन, सो दैट इज़ योर्स, मतलब वो आपके हैं। वो जो 5 क्वेश्चन है, अगर उन 5 में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर आता है, तो वो आप देखते ही आपका ब्रेन उसको क्लिक करेगा और उसके बाद यू विल एबल टू सॉल्व इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बड़ी गलती है जो शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। सो मेरे साथ भी यही रहा। तो ये चीज़ को आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बस आप जो भी करें गलतियाँ ना करें जो भी, क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे हर रैंक पे, हर मार्क्स पे एक रैंक होती है, हर मार्क्स पे एक रैंक होती है। और आप थोड़ा भी इम्प्रूव करेंगे तो आप कितने बच्चों से आगे चले जाएंगे वो डिपेंड करता है। वो गलतियाँ हमने की कि हम कंसिस्टेंट नहीं थे हमारी पढ़ाई के प्रति, कि हम इफ़ वी वर कंसिस्टेंट देन वी वर एबल टू मे बी वी कैन क्रैक। it depends on your what is your potential. So first of all you should find out that what is your potential, how much you can able to study. So ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले देखनी है, then afterward you should choose. It do not depends on any kind of the coaching कि आपने आकाश लिया, आपने एलन लिया, आपने इनोवेशन लिया, any of the coaching you take, it's your potential, because every coaching have their own topper. Why they have different topper from different coachings? Somewhat it depends on education, but the most which depends, it's on you, that what you are studying, how much you are studying, what the things you are using for your studies. और कभी भी आप स्टडी करें नीट के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इतनी सारी बुक्स को मत वो कीजिए, आप इतनी सारी बुक्सों को पीछे मत भागिए कि आपने डॉक्टर अली भी कर ली, आपने उसकी दिनेश भी कर ली, और फिर आपने और कोई बुक है नीट के लिए तो वो भी कर ली। आप इतनी सारी बुकों के लिए मत जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर एनसीईआरटी। जब आप अपनी एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप कर सकते हैं उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीट दैट, देन टेक वन बुक लाइक डॉक्टर अली, आई थिंक दैट इज़ गुड बुक फॉर बायोलॉजी। आपने वो बुक ली, अगर फिजिक्स के अंदर आप यूएसएसआर पढ़ रहे हैं या और कोई सी बुक पढ़ रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो आप एक बुक लीजिए, पहले उस बुक को सॉल्व कीजिए, हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, दूसरे का देख के मत कीजिए, हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। देन आफ्टर व्हेन यू गेट
completed with that book कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सारे खुद से कर लिए, then you should step for the next book. Do not grab every of the book in one time only, because अगर आप एक साथ इतना सारा खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा. तो एक एक चीज़ें लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर एनसीईआरटी, स्टडी ऑल योर नोट्स. मेन ऑप्शन, द मेन thing that you have to concentrate is your NCERT, your coaching notes, your modules, whatever modules you get from your coaching. So ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है इन चीज़ों को. अगर आप इन चीज़ों में सफल होंगे तो आप लोग, आई डो नॉट थिंक दैट यू विल एबल टू क्लियर एनी ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. सो इस वीडियो के अंदर बस मैं यही बताना चाहता था कि मेरी क्या गलतियाँ रही. वो गलतियाँ कोई और यदि इस वीडियो को देख रहा है, नो प्रॉब्लम, यू शेयर दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, यू कमेंट दिस वीडियो. क्योंकि मैं अपनी गलतियाँ बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि मेरी गलतियाँ क्या रही जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर माई नीड. सो बस यही है कि आप इन जो गलतियाँ मैंने बताई है उनकी आप कोशिश करें कि आप उनको कम से कम करें. सो दैट मच गाइज. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन नो प्रॉब्लम. इफ़ यू वाना लाइक, वाना शेयर, यू वाना सब्सक्राइब, नो प्रॉब्लम. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो थैंक यू गाइज. मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दासिफ दानिया. और आपको लगता है कोई और चीज़ आई कैन एक्सप्लेन यू, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू गाइज.